So we'll take it slow. We'll take it slow. We will not hurry. ठीक है? We will not be in a hurry of completing things and all. Our main aim is to understand things. So once you understand things, you can even write it in your own words, because now this is something related to your numerical as well as theory. तो यहाँ बैठ करके नहीं चलेगा. आप न्यूमेरिकल्स देखोगे, आप इसके फॉर्मूलेस देखोगे, तो एक बार याद रह जाएगा, एक बार आप समझ जाओगे, तो you can automatically solve it. It's a long story. In the very beginning, we'll start with कि क्या basics होता है, what are the basics, and what are we discussing over there. So yesterday I took an overview of the of chemistry, and the very first thing I talked about was matter. So when I say matter, everything is made up of matter, right? Me, this marker, the t-shirt I'm wearing, the board, the ink which I'm writing with, the air between us, the mobile, the stand, you name it, like everything around you is matter. So this is the reason why you need to understand what is matter. Okay? So matter is anything that occupies space and you can feel it. अब हर एक का अलग अलग डेफिनेशन होगा, उसका कुछ मास होगा. मैटर का मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. मैटर इज समथिंग व्हिच यू कैन टच और फील एंड सो ऑन. ठीक है? Whatever be the definition, the simple thing is matter is all around you. हमारे आसपास सब मैटर ही मैटर है. ठीक है? तो now we are going to discuss about the states of matter. किस states में matter पाया जाता है? So the states are Maharashtra, Gujarat and Uttar Pradesh. ये तीन states में matter पाया जाता है. Am I right, guys? No, sir. No, sir. I'm not right. How can you question the teacher? Then what is the meaning of states? I said three names of states: Maharashtra, Gujarat, and Uttar Pradesh. What is wrong with this? It's saying states of matter. So matter के वो states है ना? Or do you have another meaning for states over here? And if it is, what is it? Tell me. Sir, state means forms. Means solid, liquid, and State gaseous states. Form. Okay. You remember मैंने कल एक और word use किया था states के लिए? Phases. ये word use किया था हम लोग ने phase करके. नहीं, Yes, पहली sir. बार सुन रहे हो? पहली बार सुन रहे हो क्या? नहीं सर. Nice, sir. Acha. So when I talk about states, I'm talking about the form or the phases. And when I talk about these phases, the very famous which we need to discuss is the solid, Liquid gas. liquid, And gaseous. and gaseous. Very good. दिख रहा है कि थोड़ा और बड़ा लिखूं? Sir, दिख रहा है. Achha. Solid, liquid, and gaseous. Can you tell me some examples of solid state or matter which is in solid state? Ice. Ice, barf, ice, and पेंसिल. and क्या बेटा? पेन पेन. पेन, मार्कर. ओके, करेक्ट. हाँ भाई, लिक्विड पे जाते हैं. यहाँ पे Water. फेवरेट लिक्विड आपका वाटर. Water. वाटर तो हो गया बेटा. Petrol. पेट्रोल. वेरी गुड. पेट्रोल. गैसेस पे जाते हैं. Oxygen. Oxygen. Air. You're a smart batch, man. Good, nice, correct examples. Solid, liquid, and gaseous. These are the different states which we are aware of, which we have studied in our lower standards. Let us do a overview of these states of matters. इनके अलग-अलग phases की हम लोग एक बार बात कर लेते हैं. Solid, liquid, and gaseous. ये देखा है कभी बेटा ऐसा टेबल? इसको बोलते हैं डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. Yes, sir. Yes, sir. है ना? ऐसा टेबल बनाने का कभी भी डिफरेंसेस वगैरह आएगा ना आपको एग्जाम में भी, जैसा टेबल बना के लिखोगे, पॉइंट वाइज होगे, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं. ठीक है?
Acha, solid, liquid and gases. Now the first point of difference when I talk about is the distance between the particles in solid, liquid and gases. Distance between the particles. First point is going to be distance between particles or atoms or molecules or whatever we talk about, right? Because matter is made up of either atoms or molecules, right? No? Atom और molecule में Yes. difference होता है कुछ कि सेम ही है दोनों? डिफरेंस होता है. Difference होता है. Atom is a single element. Molecule is either the same element in the molecular form or it is a mixture of two or more elements. ठीक है बेटा? A molecule of water H2O, a molecule of H2SO4, sulfuric acid, a molecule of hydrochloric acid HCl. ठीक है बच्चे? Yes. Distance between particles. अगर मैं solid को graphically represent करूँ ना, तो इस तरीके से मैं solid को represent कर सकता हूँ. कुछ distance दिख रहा है बेटा इनके particles के बीच में? No. नहीं. नो ठीक सर. है? So distance between particles is minimal, or I can say Negligible. least या फिर negligible. थोड़ा सा रहेगा but it is like ना के बराबर. Least. When I talk about liquids, liquids कुछ इस तरीके से. ठीक है? So distance between particles is going to be Lose. more. Gases more. ये point समझ में आया? Yes. यस. But this between the particles. Suppose this is copper का metal. Copper metal is solid ना बेटा? ये बेटा copper Yes. solid है ना? है ना? Yes. यस तो सर. copper के atoms देखो ऐसा चिपक के रहते हैं दूसरे के साथ, tightly held to each other with very less space. Then let us talk about water. Water is a fluid. Actually, liquids and gases both together are called as fluid. What is the meaning of fluid? Fluid is something which can flow. Both gases as well as liquid can flow. That is why together they are called as fluids. Okay. अच्छा, solids के बारे में in depth हम लोग 12th standard में पढ़ेंगे. लिक्विड और गैसेस हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं डिटेल में. ठीक है? उसमें से भी हम लोग का मेन फोकस गैसेस रहेगा बिकॉज जनरली रिएक्शंस वी गोना लर्न आर गोइंग टू लर्न इन द gaseous state. देखेंगे आगे जाकर. Okay, so distance between the particles is least, more and most. अच्छा, force of attraction. बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट हो जाओ. Somebody's mic is on beta. Please mute it. On है. हाँ हो गया म्यूट. चलो गुड. हाँ. Force of attraction between the particles. बेटा I'm talking about solid, liquid and gases. Solid का जो particles होता है वो एक दूसरे के बहुत पास में होता है. वो एक दूसरे के पास में क्यों है? Because उनका force of interaction strong है, right? So when you are standing with someone and you are tightly holding hands, you are very close to each other. When you are standing just side by side and not holding hands, and there is a distance, that is liquid state. And once when one person is standing here and the other is standing very far from him, that is gaseous state. ठीक है? तो force of attraction क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा solid में आएगा, then liquid में आएगा, and then gases में आएगा. Am I right? यस सर. Yes. Sir. Maximum, less, least. Force of attraction. ठीक है? Distance between particles, force of attraction between particles. ये दो points का तो हो गया. Any other point of difference which you think can be a क्या बोलते हैं distinguishing factor between solid, liquid and gases apart from these two points? ये तो हम लोग ने देखा है बचपन में. Shape. क्या बेटा? Shape and volume. Shape and volume. Very good. Very good. Shape and guys आप लोग म्यूट करो अगर आप बोल नहीं रहे हो तो प्लीज म्यूट पे रहना बेटा. It disturbs others ना. Shape and volume. Solid have a definite shape and a definite volume. ये मार्कर को देखो बेटा, इसका फिक्स्ड शेप है. अगर मैं मार्कर को ऐसे पकड़ूं तो भी इसका शेप ऐसा है, ऐसे पकड़ूं तो भी ऐसा है, ऐसे पकड़ूं तो भी ऐसा है, राइट? तो मार्कर का फेस शेप जो फिक्स्ड है
ये बोर्ड जो है इसका शेप फिक्स्ड है बेटा, ये बार बार ऐसा नहीं हो रहा, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है क्या, फिक्स्ड पोजीशन पे है कि नहीं है, राइट। सो सॉलिड्स का एक फिक्स्ड पोजीशन होता है, फिक्स्ड शेप होता है, कन्फाइंड वॉल्यूम होता है, बट दिस इज नॉट ट्रू इन द केस ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड को अगर मैंने पानी को बॉटल में डाला तो वो बॉटल का शेप ले लेगा, वही पानी को अगर मैंने जमीन पे डाला तो पूरा फैल जाएगा, वही पानी को अगर मैंने ग्लास में डाला तो ग्लास का शेप ले लेगा। सो लिक्विड्स दे आर नॉट हैविंग अ डेफिनेट शेप, बट यस दे विल हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। अगर 1 लीटर बॉटल के अंदर मैं सिर्फ 1 लीटर पानी ही डाल सकता हूँ, उससे ज्यादा पानी नहीं डाल पाऊंगा। ओके बेटा, सो डेफिनेट एंड फिक्स्ड, not definite but fixed volume, no definite shape, no definite volume। गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता बेटा, ठीक है। इस रूम में जितनी गैस है ना, जिस रूम में मैं खड़ा हूं, इस रूम में जितनी भी गैस है, वो पूरी गैस को आई कैन कंप्रेस इट इनटू अ बॉटल, और वो बॉटल के अंदर जितनी गैस है अगर मैं ओपन कर दूं तो पूरे रूम में फैल जाएगी। सो देयर इज नो फिक्स्ड वॉल्यूम फॉर गैस, देयर इज नो फिक्स्ड शेप फॉर द गैस, ठीक है। अच्छा, लेट अस टॉक अबाउट compressibility, compressibility, yeah, anybody knows the meaning of compression? Applying force onto something, right? That मैं it इसको can compress be कर रहा हूं, formed मैं into ये shape. मार्कर को compress कर रहा हूं, I'm trying to compress this marker, am I able to change the shape of this marker? No, sir. No. अगर मैं इसके ऊपर रोड रोलर चलाऊंगा तब बात अलग है, ठीक है, दैट इज वेरी हाई प्रेशर, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल प्रेशर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिक्विड लूं और मैं अपने हाथ बंद करने की कोशिश करूं तो मैं हाथ बंद कर पाऊंगा, बिकॉज लिक्विड कैन फ्लो एंड आई कैन इजीली कंप्रेस देम बिकॉज पार्टिकल्स आर अवे, मैं उनको पास में ला सकता हूं। अब यहाँ पे देखो गैस है, मैंने हाथ बंद कर लिया, वो जितनी भी गैस थी मैंने उसको कंप्रेस कर लिया मेरे हाथ के बीच में, बट इस मार्कर जब रहेगा तो मैं अपने हाथ दोनों इंटैक्ट नहीं कर पाऊंगा। क्यों? Because this is highly incompressible, because it has a fixed shape and a fixed volume. So when I talk about compressibility, solids are highly incompressible, मतलब solids को हम compress नहीं कर सकते। Liquids are compressible and gases are highly compressible. ठीक है, highly compressible, gases are highly compressible. I hope this is clear guys, यहाँ तक सब पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं आपको? कि कुछ Yes, डिफिकल्टी yes, है तो sir. प्लीज आस्क मी। एनी डिफिकल्टी अप टू हियर? Not difficulty. हाँ, ओके ओके, नो डिफिकल्टी। अच्छा, एनी अदर पॉइंट बिटवीन सॉलिड लिक्विड, एनी अदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस? ये तो कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गए, इसके अलावा कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस होता है सॉलिड लिक्विड और गैसेस में? चार पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो हमने देख ली, इसके अलावा कोई होता है? any point is welcome from you, whatever you think। ये तो पढ़ा है ना हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में, Intermolecular space. intermolecular space। ये बेटा, intermolecular space is least, more, most। intermolecular space is only called as the distance between particles ना बच्चे? Okay, sir. So I will write it Melting like and this. boiling point. Slash intermolecular space. Sir, This force of attraction is also called as effect of temperature. interaction. Yes, I heard someone said Effect of melting point and temperature. boiling point. Melting point and boiling point. अच्छा, melting point and boiling point. Solids have a very high melting and boiling point. ठीक है, अगर मुझे कॉपर को मेल्ट करना है तो तुमको क्या लगता है बेटा, गैस पे मैं कॉपर को बर्तन में रखेगा तो वो मेल्ट हो जाएगा? No. अरे मेटल के बर्तन में तो खाना बनता है बेटा, इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर, राइट? तो उसको Yes. यू हैव टू रेज High melting point. thousands of degrees Celsius to melt that copper. So मतलब it's required a very high melting and boiling point.
लिक्विड्स का मॉडरेट होता है 100 डिग्री सेल्सियस अचीवेबल एट नॉर्मल कंडीशंस एंड गैसेस का क्या होता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो यस और नो Yes, sir. इफेक्ट ऑफ स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर there's a difference अभी मैं बताता हूँ एक मुझे लिख लेने दो slight change in temperature. When I talk about temperature, what is temperature, guys? Temperature is the degree of hotness or coldness of a body. ठीक है? Body temperature कितना होता है किसी को पता है? 50 degree Celsius, right? No. 37 degrees Celsius. 37 degree Celsius. And what is room temperature? 27. 25 or 27 degree Celsius. ठीक है? तो measurable temperatures. So they are telling you how hot or how cold is the surrounding of you. अब रेफ्रिजरेटर के अंदर अब फ्रीजर के देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस है अब नॉर्मल फ्रिज के अंदर देखेंगे तो 3 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है राइट बेटा अच्छा Yes. अभी this point of difference is effect of slight change in temperature मतलब अगर मैंने टेम्परेचर को थोड़ा चेंज किया तो इसका जो डेफिनेट क्या बोलते हैं शेप और वॉल्यूम है उस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैंने सॉलिड्स का टेम्परेचर थोड़ा सा कम ज्यादा किया तो कुछ फर्क पड़ेगा इसको सॉलिड्स को No, No, sir. sir. No, या sir. क्यों नहीं पड़ेगा बेटा बिकॉज टू मेल्ट देम और टू Solids बॉइल are देम यू विल रिक्वायर अ वेरी हाई टेम्परेचर छोटू मोटू 1-2 डिग्री सेल्सियस तो कुछ फर्क नहीं पड़ता वो बोलता है ये जो आपका क्या बोलते हैं ये जो आपका व्हाट इज द डायलॉग आई डोंट रिमेंबर द डायलॉग ये जो आपका टॉर्चर है वो हमारा वार्म अप है ऐसा बोलता है सॉलिड वाला ठीक है तो ये क्या बोलता है कि इफेक्ट ऑफ स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है किसी को पता है मस्त No इंग्लिश वर्ड effect. है ना के बराबर नेग्लिजिबल मींस ना के बराबर ओके तो इफेक्ट ऑफ स्लाइट चेंज इन टेम्परेचर इन सॉलिड्स इज नेग्लिजिबल इन लिक्विड्स इज अगर लिक्विड में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं तो वार्म अप हो जाता है जल्दी से राइट या फिर उसको हाँ. मैंने थोड़ा सा कूल डाउन किया तो जल्दी से ठंडा भी होता है Yes, sir. Yes, sir. yes or no so a slight change in temperature is going to have effect on liquid so we will Moderate. write effective in a moderate state effective in a moderate state and gases में क्या होगा आप हल्का सा टेम्परेचर चेंज करोगे ना गैस एकदम एक्सपैंड होती है अगर हल्का सा टेम्परेचर लो करोगे तो गैस कंप्रेस कूल हो जाएगी गैसेस को टेम्परेचर का बहुत दे आर वेरी टेम्परेचर सेंसिटिव गैसेस तो यहाँ पे नेग्लिजिबल यहाँ पे इफेक्टिव या मॉडरेट यहाँ पे क्या हो जाएगा More effective. Highly effective. highly effective ठीक है guys Yes, sir. these points of differences between the solid liquid and gaseous state are you clear with this Yes, sir. have you written this down No, sir. guys Yes, sir. you want to Yes, write it sir. down I guess there are Yes. some 40 odd students in the class 40 बच्चे हैं क्लास में Yes. and I'm repeating myself any of you 40 can ask me any question at any point of time you do not think कि नहीं मैं क्लास को डिस्टर्ब नहीं करूंगा या फिर मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा this is your right to ask whenever you're not understanding there and there itself then and there itself No doubt, sir. can I erase this इसको मिटा दो बोर्ड पे से Yes, sir. okay a simple appreciable answer which I expect is either a yes or a no ऐसा silent I will not be able to understand because I cannot see you guys you can see me so can I erase this have you written this down or you have taken screenshot or you want to write it down whatever let me know and I will do accordingly अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो बाद में मेक श्योर यू राइट इट डाउन इन योर बुक बिकॉज द मोर यू राइट द बेटर यू लर्न ऑलवेज रिमेंबर बेटा राइटिंग प्रैक्टिस हमेशा काम आएगी
So I ask this question again. Can I erase this? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मेहनत से लिखा और मिटाने के लिए बोल दिया. मेरा इतना प्यारा लिखा है, मैंने मिटाने का मन नहीं करता. मिटाना पड़ेगा बेटा. This is what is life. I hope this basic point of difference between solid, liquid and gases is clear for everyone. ये हम लोग ने 8th में भी शायद पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है. Am I right बेटा? Yes. हाँ. ये कुछ ज्यादा चेंज नहीं होता है 11th में. ये वही रहेगा. Obviously, facts cannot be changed. ना, whether you are in 11th or in 12th or you are in the space, wherever you are, है ना बेटा? Facts will not be changed. Can they be? No, sir. Okay, beta. Okay, fine. Before moving ahead to learning about actual gases, I want you to understand what are the different forces of interaction between different particles, whether liquid, whether solid, whether gaseous, whatever you talk about. Let us talk about the forces of interaction. The forces of interaction. The forces of interaction between particles. Forces of interaction किसका रहेगा? Particles का रहेगा ना बेटा. हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, या फिर वाटर हाइड्रोजन के बीच में, या फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में, या फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में. Whatever. I'm just telling random names. ठीक है? So force of interaction. ये हमको देखना है. What are the different types of forces of interaction? The first force of interaction which we are supposed to study is dipole interaction. Dipole interaction. So we need to understand this word dipole. If you remember, मैंने एक basic वाले lecture में आपको dipole का मतलब समझाया था. Do you recall this? आपको याद आ रहा है मैंने dipole का मतलब समझाया था? कुछ लोग नहीं थे, कुछ लोग थे. जो लोग थे उनको पूछ रहा हूं. जो लोग थे उनको याद आ रहा है कि फिर से बताऊं बेटा प्लीज? एटलीस्ट बोलो. तुम लोग बोलो. Sir, it is something like a positive and negative. सर ज्यादा याद नहीं आ रहा सर. ज्यादा याद नहीं आ रहा है. धुंधला धुंधला याद आ रहा है. वो तूफानी रात जिस दिन मैंने आपको डायपोल के बारे में बताया था. फिर से एक्सप्लेन करूं गाइस. You remember the example which I gave you for dipole? What was the example? Can someone tell me? संस्कार, तुम हो लेक्चर में? इस लेक्चर में संस्कार नहीं है. मुझे बहुत दुख हुआ. कोई बात नहीं. Anybody remember Separation. What बेटा? Anybody remember The separation due to positive and negative charge. Likely charges. Separation, no. Separation not a right word बच्चे. चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ. Let us break this into two words. Dipole. Di means मर जाओ. Pole मतलब खंबा, मरा हुआ खंबा. Dipole, right? Yes. Yes, sir. No, it's No. not right. No, sir. Two. Two. And pole means charges. Charge. यहाँ पे केमिस्ट्री में इसका मतलब क्या है? Dipole. Dipole means di means two, pole means charge. दो charge. दो So charge. that is what I was telling, positive and negative charges. But you were saying cancellation या फिर कुछ तो बोले ना तुम. हाँ सॉरी सर, वो थोड़ा गड़बड़ हो गया. वो वर्ड गलत था ना बेटा. वो वर्ड उसका पूरा मीनिंग चेंज कर देगा बेटा. Let me understand. Let me make you understand. Two charge. ठीक है. Dipole. दो charge interaction. What is this दो charge interaction? Let us understand. So Sir, positive, dipole, negative, charge. negative, This positive. charge is pole is called as charge. ठीक है. तो अभी एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं हम लोग, जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Yeah. If you can remember and recall, can someone tell me what is electronegativity? Anyone from the new guys, from the people who have joined new?
पहले वालों को तो मैंने बताया है, दूसरे वालों को आई वुड लाइक टू सी, अगर आपको पता है, आपको याद है, मतलब आपको डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? एनीवन? नहीं? Electronegativity, it is related to the negative charge of the electrons, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You remember the example I have given you? I have two sons. हाँ सर, Yes, sir. Yes. चलो, बर्गर वाला. एक 9 साल का, एक 5 किसी लोग को- Burger. किसी लोग को ये बर्गर वाला एग्जांपल नहीं पता, मैं तुम लोग को फिर से बता दूंगा। सर जिसको जितनी इसकी जरूरत है वो उतना लेगा उसके हिसाब से। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। ये दिस इज अथर्व ना? यस सर। हाँ, देखा, तुम्हारा आवाज पहचानने लग गया मैडम। रचना, ये टू सन्स वाला एग्जांपल तुमको बताया था बेटा मैंने? रचना, आर यू देयर? आप कल थे, मुझे पता है। नो सर, मतलब नहीं, आप थे कल, मुझे पता है, में कल वीडियो लेक्चर था। क्या बोल रहे हो बेटा? कल थी में पर एग्जाम्पल नहीं बताया था। ये एग्जांपल नहीं बताया, ठीक है। आई एम रिपीटिंग द एग्जांपल फॉर एवरीबॉडी, ठीक है, फॉर एवरीवन आई एम रिपीटिंग दिस एग्जांपल। आई हैव टू सन्स, मेरे दो बेटे हैं बेटा। ये बड़ा बेटा 9th में है और छोटा बेटा 5th में है, ठीक है। बड़ा बेटा 9th में है और छोटा बेटा 5th में है, पर हम लोग बहुत गरीब है, तो वी कैन नॉट अफोर्ड फूड एवरी डे, ओके। तो एक दिन मैंने ऐसे ही मेहनत मजदूरी किया और थोड़ा सा पैसा जमा किया, जिससे मैं सिर्फ एक बर्गर खरीद पाया। बर्गर दिख रहा बेटा कितना टेस्टी है? Yes, sir. हाँ बेटा, वो खाना नहीं है हमको, ठीक है बच्चे। ये देखो सर मैंने कल खाया था। कल खाया था बर्गर तुमने? आज मैंने आलू टिक्की खाया नाश्ते में सुबह। बोलो अभी। बस मस्त। 9th और 5th में है, ये बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा, एक ही बर्गर में अफोर्ड कर। अभी मैंने क्या बोला कि भाई तुम दोनों को ये शेयर करना पड़ेगा, मेरे पास एक्स्ट्रा बर्गर नहीं है, यू हैव टू शेयर दिस बर्गर एंड ईट, अदरवाइज आई कैन नॉट अफोर्ड 2 बर्गर्स फॉर यू गाइस। माय किड्स आर वेरी नाइस, दे अंडरस्टूड। अभी क्या किया, आइडियली क्या होना चाहिए, आइडियली आधा ये खाना चाहिए और आधा ये खाना चाहिए, राइट? तो बीच में Yes, से sir. आधा आधा, बट आधा आधा ये लोग ने नहीं खाया। ये लोग ने पता कैसे खाया? ये वाला ज्यादा वाला पार्ट 9th वाले ने खाया और कम वाला पार्ट 5th वाले ने खाया, ठीक है। ज्यादा वाला पार्ट 9th वाले बेटे ने खाया और कम वाला पार्ट 5th वाले बेटे ने खाया, बट आफ्टर ईटिंग लेस एंड मोर स्टिल दोनों का पेट भर गया। इसका भी पेट भर गया, इसका भी पेट भर गया, दोनों का भूख सेटिस्फाई हुआ। ओके बेटा, नाउ थिंक अबाउट एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के बारे में सोचो। एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट्स टू अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मेरे को बताने दो दूसरों के लिए बेटा। ये जो बड़ा बेटा है ये क्लोरीन है और ये छोटा बेटा है ये हाइड्रोजन है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, दोनों को इलेक्ट्रॉन्स की भूख है, ठीक है। बट क्लोरीन को ज्यादा है और हाइड्रोजन को कम है। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स की भूख ज्यादा है, हाइड्रोजन को कम है, बिकॉज क्लोरीन इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। Because of its higher electronegativity, the shared pair of electrons, which should ideally be in between. Ideally क्या होना चाहिए बेटा? This shared pair of electrons should stay in between. जितना इससे दूर उतना उससे दूर। But इसका भूख ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो ये shared pair of electrons हल्का सा इसके तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, बीच में नहीं रहेगा, हल्का सा इसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा। ये हल्का सा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम मॉलिक्यूल है HCl, HCl इज द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, बट वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर एक माइनस डेल्टा चार्ज आ गया। डेल्टा मतलब स्मॉल अमाउंट, और इसके ऊपर एक छोटा पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, दो चार्ज डाइपोल। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज अ डाइपोल एंड दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ पोलर मॉलिक्यूल।
दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ पोलर मॉलिक्यूल. पोलर मतलब जिसके ऊपर चार्ज हो, जिसके ऊपर चार्ज है, पोलर मॉलिक्यूल. अभी अगर हम लोग अर्थ की बात करें, अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी के दो पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. वहां पे चार्ज नहीं है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है. ठीक है. अभी वहां पे जो बेर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर बेर, बिकॉज वो पोल पे पाया जाता है ना, दैट्स व्हाई इट इज पोलर बेर. ये बेटा पोलर बेर देखा है तुमने कभी? नहीं. नहीं देखा है, मैंने देखा है. मैंने पैंडा देखा है, पोलर बेर नहीं देखा है. मेरे घर में पोलर बेर रहता है. माय नेफ्यू, ही इज लाइक अ पोलर बेर. ही इज फैट एंड फेयर. Okay, so I have seen pandas. So when I was in China, I saw panda beta. Pandas are very cute. मैं हम लोग ने जब देखा तब वो बैम्बू खा रहा था. एक घंटे बाद हम लोग पूरा पार्क घूम के वापस आए, फिर से वो बैम्बू ही खा. So pandas they only eat and sleep. They're very cute. So सर ये मेरे को एक डाउट पूछना था सर, शायद उस दिन में रह गया था. तो आज पूरा कर सर लो. सर हाउ डू वी गेट टू नो दैट कौन सा एलिमेंट को ज्यादा ये लगता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की? मैं बताएगा. I will tell you. अथर्व मैं आपको बताऊंगा. Before that, electronegativity का definition. What is electronegativity? The ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself within a bond is called as electronegativity. एक एटम की क्षमता कि कितनी ताकत से वो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करे, उस क्षमता को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं. Is this concept clear in your mind about electronegativity? Electronegativity clear है बेटा दिमाग में? Yes. Yes. यस सर. Everybody, all the new and the old students, all the Yes. new and the old gods, are you clear with this? Yes. Yes, sir. So Yes, sir. such a molecule which is a polar molecule is also called as a dipole. Why? Because there are two charges present on that molecule. ठीक है. This is their dipole moment. अभी ये सब dipole moment वगैरह क्या होता है वो अपन देखेंगे आगे आगे धीरे धीरे. So this was the example which I wanted to tell you to relate to electronegativity and polar. Now to answer अथर्व's question. अथर्व क्या बोला कि कैसे पता चलेगा किस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किसका कम है. So we know the electronic configuration. अथर्व, right? यस सर. इलेक्ट्रॉनिक Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर उसके लास्ट शेल में, अगर एलिमेंट के लास्ट शेल में 3 या 3 से कम एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. अगर वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव. और अगर उसके अंदर 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा. सिंपल एज दैट, बेसिक रूल. ओके अथर्व, यस सर. क्लियर हुआ? हाँ सर. So can we say that all the metals are electropositive and all the non-metals are electronegative because उनका configuration वैसा रहता है? हाँ सर. ये तो सीखा ना हम लोग ने लोअर Yes, Yes, में, sir. electropositive and electronegative, है ना? अच्छा अच्छा. Can I rub this? Yes. 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 अच्छा. Let us take an example of water. वाटर की बात करते हैं बेटा. ठीक है. H2O, दो हाइड्रोजन और एक O. O is more electronegative as compared to hydrogen. तो ये जो shared pair of electron है, ये हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. We will show it by this symbol. The shifting of electron is shown by an arrow made by a cut mark. What does this cut mark indicate? This is indicating that the sharing of electrons is unequal. जो चीज बीच में रहनी चाहिए थी वो बीच से शिफ्ट होकर किसी एक के पास ज्यादा चली गई है. That way. ठीक है. That is why we are showing this shift in electrons by a क्रॉस एरो. ठीक है. तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा. कैन आई से दिस इज अ डाइपोल? Yes, sir. Yes, Very good, sir. because two different charges are present at the same time on the same molecule. उसी मॉलिक्यूल के ऊपर दो अलग अलग चार्जेस प्रेजेंट है. ठीक है बेटा. अच्छा, अब if I give you a beaker full of HCl, बीकर पता तुम लोग को बेटा कैसा प्यारा बीकर बनाया मैंने, देखो. ठीक है. इस बीकर के अंदर आई एम गिविंग यू HCl भर के. ये HCl के अंदर सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है क्या HCl का बेटा? नहीं. नहीं कितना सर. मॉलिक्यूल रहेगा, कुछ आइडिया है? कितना मॉलिक्यूल रहेगा बेटा?
I'm not asking the exact number. I'm just telling you many, less, few, one, half, two, कितना? Many. 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 ए बेटा thousands and thousands. ठीक है? अगर सपोज मैंने आपको बोला कि I have 2 moles of HCl, तो मेरे पास कितना मॉलिक्यूल हो जाएगा बेटा? 2 into Avogadro's number. What is Avogadro's number? 6.02 into 10 10 to 23. 2 moles into 6.022 into 10 to the power 23 crores of molecules बेटा 10 to the power 23 बहुत बड़ा नंबर है ठीक है तो इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे और सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हैं पोलर है ना Yes. plus Yes, Cl. sir. अच्छा तो इसके बाजू में जो H plus दूसरा Cl minus. हाँ इसके बाजू में भी तो ऐसा ही polar प्लस molecule माइनस होगा। कट होके HCl हो जाता है। अरे नहीं रे रुक रे सुन रे ठीक है बेटा ये देखो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा अगर बात होगा क्या गाइस म्यूट आई डू अंडरस्टैंड हम सब लोग घर पे हैं और आवाजें आएंगी बट उन आवाजें रुकने का अपने पास ऑप्शन है म्यूट कौन है कौन बात किसका माइक ऑन है बेटा Sir, बच्चन सर. सर बच्चन सर का ही है सर। Sir का है। बच्चन सर आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू कोई बात नहीं ये देखो एक HCl मॉलिक्यूल के बाजू में दूसरा HCl मॉलिक्यूल है इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा सपोज नीचे भी यहाँ पे है माइनस प्लस तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा इसके बाजू में एक और HCl रहेगा ठीक है देन इसके बाजू में एक और HCl रहेगा फिर ये यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा इस तरह का इंटरेक्शन हो जाएगा इनके बीच में एक डाइपोल हाँ। दूसरे डाइपोल के साथ इंटरैक्ट कर रहा है इंटरैक्ट मतलब इंटरैक्शन मतलब उनके बीच में आकर्षण है थोड़ा सा किसके वजह से बिकॉज ऑफ दिस ऑपोजिट चार्जेस ऑन देम यस और नो दिस Yes, इज नोन Yes, एज sir. dipole interaction this is known as dipole interaction is this clear guys Yes, sir. Yes, sir. so कोई भी polar please molecule कोई भी polar molecule उसके अंदर डाइपोल इंटरेक्शन रहेगा सो व्हेन आई गिव यू अ ग्लास फुल ऑफ वाटर एक्चुअली वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है बट यू कैन कॉल इट एज डाइपोल इंटरेक्शन आल्सो बट वी विल कीप इट फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाद में पढ़ेंगे उसको HCl एक पोलर मॉलिक्यूल तो उसके अंदर डाइपोल इंटरेक्शन रहेगा ऐसा कोई दूसरा एग्जांपल आप बता सकते हो मेरे को NaCl. NaCl is not a polar molecule ना बेटा NaCl Na plus and Cl minus इसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इसके पास जा चुका है शेयर नहीं हो रहा है डाइपोल का होगा जब इलेक्ट्रॉन अनइक्वल शेयर होगा यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होगा ना बेटा समझ गए कोवैलेंट बॉन्ड का बताओ कोवैलेंट बॉन्ड का think come on think about compounds think about molecules सोचो कुछ तो सोचो Sir H2O. H2O तो मैंने बोला अभी हाँ H2O भी होगा बट H2O के अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा which is in depth extended version of dipole interaction this is very H2O होगा any else think about it any else CH4. CH4 yes CH4 आप ले सकते हो ठीक है CH4 भी आप ले सकते हो NH3. NH3 अमोनिया इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा बट यस यू कैन टेक CO. एग्जांपल ऑफ NH3 आल्सो so this is your dipole interaction ठीक है you want to write it down or like what अच्छा रुको उससे पहले एक और चीज बताऊंगा HCl ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा ये तुमको समझा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस Yes. Yes, sir. हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे बनता है बेटा व्हेन हाइड्रोजन शेयर्स इट्स वन एटम विद अदर हाइड्रोजन एटम राइट क्लोरीन का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा बेटा व्हेन इट शेयर्स one इलेक्ट्रॉन ईच टू गिव मी Cl2 बराबर बटेगा टू गिव मी H2 राइट अब मुझे यहाँ पे बताओ यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में नहीं. हाँ सर बराबर हाँ क्यों बिकॉज अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है
तो इसका भी 1 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -2 है तो इसका भी -2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। राइट बेटा, तो दोनों को सेम भूख लगी है तो वो इक्वल डिवीजन करना ही पड़ेगा, तो वहां पे बीच में रहेगा और वो कहीं शिफ्ट नहीं होगा, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो H2 इज नॉट अ पोलर मॉलिक्यूल, नाइदर इज Cl2, बट HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. H, Yes, sir. H. Sir, हाँ बोलो बेटा। sir, board blur दिख रहा है. बोर्ड ब्लर दिख रहा है बेटा? नहीं, बरोबर है। नहीं सर, बरोबर दिख अभी ब्लर हुआ, अभी ठीक है। अभी दिखा. अभी दिखा? ये बोर्ड ऐसा मत कर, मार दिया बेटा मैंने उसको, डोंट वरी। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अभी इंड्यूस डाइपोल मतलब पता है ना, वही तो बता रहा हूँ। डाइपोल डाइपोल तो हमने देखा, अब ये इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है? इंडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी को पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्शन? क्रिएट क्रिएट नहीं, इंडक्शन मतलब इन्फ्लुएंस करना। इंडक्शन मतलब अपने प्रॉपर्टीज किसी दूसरे के अंदर डालना। जब आप कंपनीज में जाते हो ना, जब किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी ऑफिस को ज्वाइन करोगे, तो वहां पे आपका इंडक्शन सेरेमनी होता है, मतलब आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो वो लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए उसको इंडक्शन बोलते हैं। तो इंडक्शन का मतलब सिंपल होता है अपना प्रभाव किसी और के ऊपर डालना। ठीक है बेटा, अब तुम लोग सब लोग क्लास में हो, तुम सब लोग बिगड़े हुए थे, बट मैं एक बहुत ही अच्छा और सुधरा हुआ इंसान हूं, तो मैं अपने गुण तुम्हारे अंदर डालूंगा। तो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम इंड्यूसिंग माय हैबिट्स इनटू यू, दैट वे। सो इंडक्शन। अभी इसका मतलब देखो, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, ठीक है। HCl का मॉलिक्यूल है, दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, हमने अभी देखा। ओके, उसके बाजू में एक से इसके बाजू में एक H2 का मॉलिक्यूल। H2 मतलब क्या? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। Hydrogen. H2 मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। Yes. H2 मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है? बिटवीन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, राइट? एंड दिस इज अ Yes. नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये पोलर नहीं है। ये बेटा ये पोलर है क्या? No, sir. नहीं सर। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ये क्या करेगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करने का कोशिश करेगा, यस और नो? Yes. नहीं सर। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इतना डिस्टेंस नहीं रहेगा, ऑब्वियसली इसके पास रहेगा ये। तो इसका शेयर्ड पेयर जब ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? ये पूरा खींच पाएगा क्या दोनों इलेक्ट्रॉन्स को? नहीं, बट थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वाले हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ये तो बहुत ज्यादा छोटा चार्ज आ जाएगा। डेल्टा 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 मीन स्मॉल, डेल्टा डेल्टा मीन वेरी स्मॉल, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस डेल्टा डेल्टा माइनस डेल्टा डेल्टा। तो ये भाई साहब ने क्या किया? अपना डाइपोल का नेचर दूसरे नॉन डाइपोल के अंदर इंड्यूस किया और आपस में इंटरेक्शन किया, उसके साथ इंटरेक्शन किया, उसको अट्रैक्ट करने का कोशिश किया। ये भाई डाइपोल था, इसने अपना डाइपोल का नेचर इसके अंदर डाल दिया। क्यों? ये पॉजिटिव है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच तो नहीं पाएगा, बट हल्का सा शिफ्ट करेगा, हल्का, वेरी मिनिमल, बहुत छोटा, जिसकी वजह से इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर छोटा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ, जो पहले नॉन डाइपोल था अब डाइपोल बन गया छोटा सा, भले ही छोटा बना पर बन गया छोटा सा, तो इसकी वजह से बना। तो इसने अपना नेचर इसके अंदर इंड्यूस किया। तो अभी डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल इज ऑलवेज बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ये देखो HCl और ये H2 अलग अलग है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सर एक सवाल है पूछो बेटा। सर। सर हाँ, बोलो। ये सर एलिमेंट्स को सर नेगेटिव इसका बुक रहता है, नेगेटिव चार्ज का, सर पॉजिटिव चार्ज का क्यों नहीं बुक रहता?
मैं समझा नहीं, थोड़ा फिर से बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? सर अपने कहा ना इन सबको नेगेटिव चार्ज चाहिए रहता है, इनको इसका बुक रहता है नेगेटिव चार्ज का। नेगेटिव तो चार्ज पॉजिटिव मतलब का, इलेक्ट्रॉन ना बेटा, नेगेटिव हाँ चार्ज सर मतलब हाँ सर, इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का बुक रहता है, सर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं रहता? इलेक्ट्रॉन्स कभी पॉजिटिव होते नहीं। पॉजिटिव कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। न्यूक्लियस किसी चीज को अट्रैक्ट नहीं करता है, ना ही रिपेल करता है। जो भी इंटरेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, इसकी वजह से होता है, आपका आउटर मोस्ट शेल की वजह से होता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में ही हम लोग बात करेंगे। समझ गए? ओके न्यूक्लियस की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे जो भी इंटरेक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर शेल की वजह से हो रहा है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है, उसके ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से हो रहा है। अगर बाहर के शेल में से मैंने इलेक्ट्रॉन्स कम किए तो उस एटम के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कैसे बेटा? ये देखो, दो, सपोज इसमें 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिसाइडेड रहेंगे? 2 and 3। अब इसके अंदर से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ले जाऊं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, तो अब इसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4, एंड टोटल प्रोटॉन्स कितने हैं? 5। तो -4 + 5 इज गोइंग टू बी व्हाट? +1। यस और नो? तो अगर इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा, निकल जाएगा, या फिर उससे थोड़ा दूर हो जाएगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिविटी अपने आप आ जाएगी ना बेटा। बिकॉज टोटल, why is an atom electrically neutral? Because total number of electrons is equal to total number of protons. Now if you remove or add electrons, the total charge is going to be affected. Yes or no? Yes. यस सर। है ना बेटा? ये हमने सीखा है ना लोअर स्टैंडर्ड्स में। हाँ सर। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? हाँ बेटा बोलो। सर आप रिपीट कर सकते हो, मुझे आपका वॉइस क्लियर नहीं हुआ था। कौन सा वाला? ये पार्ट? सर वो टॉपिक ही क्लियर नहीं हुआ स्टार्टिंग से। यहाँ से? नहीं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ओके 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 फाइन, ठीक है। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन, सिंपल। डाइपोल क्या होता है हमको पता है। डाइपोल इज नथिंग बट a molecule which is having the presence of both opposite charges on itself, ठीक है? इसी के ऊपर पॉजिटिव भी है, इसी के ऊपर नेगेटिव भी है, तो दिस इज अ डाइपोल, दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। जब इसके बाजू में एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल आता है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हल्का सा जो पॉजिटिव चार्ज है, वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। ऑल चार्जेस विल ऑलवेज ट्राई टू न्यूट्रलाइज देमसेल्व्स, ओके? So this positive charge in the context, in the pretext, इसके प्रयत्न में, इसको न्यूट्रलाइज करने के प्रयत्न में वे इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करने का ट्राई करेगा। बट ये इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरीके से अपने पास ले नहीं सकता है, तो बहुत ही हल्का सा शिफ्ट कर देगा उसको इसी मॉलिक्यूल के अंदर, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे अमाउंट का आ जाएगा। तो जो पहले नॉन पोलर था अब पोलर हो गया। क्यों? बिकॉज इस डाइपोल के इन्फ्लुएंस में आकर के इस ऐसे टाइप के इंटरेक्शन, दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स में जो ऐसा इंटरेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। यस, अच्छा बच्चा अभी यस सर। ठीक है, गुड। या प्लीज नोट इट डाउन ना, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। बोलो सर बेटा, हम बोलो। ऐसा एक ही ऐसा मतलब सर अभी ऐसा है ना एक क्वेश्चन NaCl2। हाँ NaCl2 तो नहीं होता बेटा। ओके सर। बोलो बोलो बोलो। नहीं सपोज सर अगर ये Cl के नीचे ऐसा वो 2 होता सबस्क्रिप्ट वाला, तो सर कैसा हाँ। होता? H2O ले लो ना एग्जांपल। हाँ H2O हाँ भाई उल्टा गई, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। ये दूसरे नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये दूसरे नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। वैसे ओके सर। अभी पानी के अंदर कितना सारा सॉल्ट्स डिसॉल्व रहता है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से डिसॉल्व रहता है ना पता उसके अंदर, कि ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने आप में गुला लेता है, मिक्स कर लेता है। सॉरी, ओके गाइस। सर डाइपोल्स केवल कोवैलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स में ही होता है ना? यस, कोवैलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है।
थोड़े अगले चैप्टर में, मतलब एक दूसरा चैप्टर है उसके अंदर हम लोग ये भी देखेंगे that because of the difference in the size of the cation and anion, there is some polar nature induced in a ionic bond also, but that is a exception and rare cases, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए ये डाइपोल की जो बात करिए हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं. ठीक है बेटा, ये लिख लो बेटा. Forces of interaction first, dipole interaction. A dipole is a molecule which consists of both positive and negative charge on them at the same time. Interaction between one dipole. Please repeat. Okay. Dipole interaction. Dipole interaction. Do you need the light? Yeah, it is okay without the light also. Without the light. Right. Dipole interaction. A dipole is a molecule. A dipole is a molecule on which a dipole is a molecule on which the presence of both positive and negative. A dipole is a molecule on which the presence of both positive and negative charges exists at the same time. The presence of both positive and negative charges exists at the same time. Exists at the same time. क्लियर है इतना? Yes. सर हाँ सर. Yes. सर रिपीट कर सकते हो? बेटा बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा. A dipole is a molecule. A dipole is a molecule on which the presence of both positive and negative charges exists at the same time. ठीक है? यस सर. This happens due to difference in electronegativities. ये बेटा स्पेलिंग सबको पता है ना कि लिखूं बोर्ड पे? This happens. जरूरत नहीं है सर. सर लिखने की जरूरत नहीं है सर. This happens due to difference in electronegativities of the joining atoms. This happens due to the difference of electronegativities between the joining atoms. The shared pair of electrons is shifted slightly towards the more electronegative atom. Towards the more electronegative atom, creating a partial negative charge on it. When I say partial negative charge के बाद में ब्रैकेट में ऐसा लिख लेना बेटा, minus delta. Delta means small charge. Creates a partial negative charge on it. At the same time, a partial positive charge is created on the less electronegative atom. At the same time, a partial positive charge is created on the less negative atom.
when many such polar molecules are सर द पार्शियल के बाद पार्शियल And- पॉजिटिव partial positive charge on the less electronegative atom. On the less electronegative atom. लिख लिया सबने? Yes, sir. यस सर उसके बाद मैंने क्या बोला था? हाँ, When many such when many such molecules, when many such polar molecules, देखना, when many such polar molecules come together, when many such polar molecules come together, they interact with each other. They interact with each other. They interact with each other. On account of the opposite charges on them. On account of the opposite charges on them. On account of the opposite charges on them. Such an interaction is called as dipole-dipole interaction. Such an interaction is called as dipole-dipole interaction. लिख ले guys? सर वो लाइन एक बार रिपीट करो ना. कौन सा वाला बेटा? कौन सा line बेटा? When many such polar molecules come together, they interact with each other. They interact with each other due to the opposite charges. Due to the opposite charges present on them. Due to the opposite charges present on them. Such an interaction is called as dipole-dipole interaction. Okay, guys? Yes, sir. ठीक है, आज अभी मैंने आपको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का थ्योरी लिख के दिया. आपको डाइपोल इंड्यूस डाइपोल का इंटरेक्शन का जो वर्डिंग्स है अपने वर्ड्स में लिखना है. आपको टेक्स्ट बुक में से नहीं देखना है. अगर आपको समझ गया है कि व्हाट इज डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, व्हाट इज इंड्यूस डाइपोल, आप उसको जैसे ये मैंने जो बोला अपने वर्ड्स में बोला बेटा, मैंने कोई बुक में देख के नहीं बोला. ऐसे आप अपने वर्ड्स में लिखने का कोशिश करो ताकि आप समझ पाओ कि यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. व्हाटएवर फुटा फुटा रहेगा चलेगा, बट I want you to write it down in your own words. This is your homework for today. ठीक है? You have to write down dipole-induced dipole interaction in your own words. Okay, guys? Yes. So to revise, today we studied about the differences between the three phases of matter or states of matter: solid, liquid, and gaseous. And we studied two types of interaction between molecules: dipole-dipole interaction and dipole-induced dipole interaction. I guess this was something new for you. वो पहले वाला तो अपने लोअर साइंस में पढ़ा है, बट ये नहीं पढ़ा था, तो ये अपने कुछ नया पढ़ा. मैं आपसे ये चाहूंगा कि आज ही, जैसे मैंने ये कंप्लीट किया, ये आज ही आप टेक्स्ट बुक से पढ़ लो, नेट से पढ़ लो, इसके बारे में कंटेंट पढ़ो. कोई भी डाउट आएगा तो वो मुझसे पूछो, है ना? ओके गाइस, तो इसको आज ही रिवाइज कर लेना. एंड आई एम ऑलवेज ओपन फॉर डाउट्स. I hope whatever थोड़ा बहुत we discussed, you have understood for today. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Very good, very good. So in the next lecture, we will continue from this topic. I will definitely revise this what we have studied, and then we will move ahead with the next topic in this chapter. Okay, wherever you think I'm going too fast or you're not understanding, ask. Like otherwise asking me doubts, I want others also to ask me doubts. Okay, bacha, you should keep thinking. The main purpose of a science student is to always think. Arey, yes or no? Yes.